میرے نزدیک وہ آیت جو ہے جو کوفہ کے آس پاس لکھی گئی ہیں یا وہ کوفہ کے آس پاس یہ باتیں چل رہی ہوں گی، یہ کوفہ سے قریب 300 کلومیٹر کے آس پاس دور ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہ چونکہ ماؤنٹین قرآن وہاں ہے، شریف لہٰذا میں کہتا ہوں کوفہ ہی جانے کی کیا ضرورت ہے، انہیں ماؤنٹین ہی پہ بیٹھ کے لکھی ہوگی کسی نے. پرائمری سورس تو ہمارا تواتر طبقہ ہے، اسی پر بات ہوئی ابھی ایگنوسٹک اسکیپٹک ایگنوسٹک سے. پر وہ تو ہائیلی پرون ٹو ایرر ہے ایکچولی. کر دیجیے ثابت، یعنی یہ کیسے ہوا کہ ہائیلی پرون ٹو ایرر، نہیں یعنی وہ تو تواتر طبقہ جو ہے وہ ہائیلی پرون ٹو ایرر ہے. فلو بھائی ایسے کرتے ہیں، آپ کی جو ٹیکنیک ہے نا وہ مجھے پسند آئی ہے، تو کیوں نہ سناتنیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ مغلیہ دور میں بنی ہوگی، کیونکہ عید بکر جو ہے وہ انڈیا کے اندر منائی جاتی ہے اور ہندوؤں کو جلانے کے لیے سورہ بقرہ بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے فلو بھائی، لو جی اعتراض گھڑ لیا نیا، لو جی پھیلا دو اسے مارکیٹ میں، جی یہ بالکل ہو رہا صحیح. ہے اسلام کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے. اچھا جی، یہ ہے فیلیو سیپین. سلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام جی بھائی. عامر بھائی کیسے ہیں؟ اور جی کون جی ہے؟ تھینک یو. ہاں، ایکنالج اسلام بھائی، سائی مسلم بھائی، سبھی کو سلام. اچھا مفتی صاحب، کوشش کروں گا مختصر سی گفتگو کے لیے، پر ہمیشہ کی طرح ہو سکتا ہے کہ تھوڑی لمبی چلی جائے. میری آپ سے اس بارے میں بات ہوئی ہے، اور سورہ فاتر کی آیت 27 کے بارے میں بات ہوئی ہے میری آپ سے. ہاں ہوئی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میں نے جو اس کے بارے میں میری جو آپ سے گفتگو ہوئی اس میں آپ نے بتایا کہ وہ اس میں کئی جو ٹرانسلیشنز میں نے دیکھے ہیں، یا جو ایون جیسا میرے کو دھیان آ رہا ہے، جو کچھ ایک تفاسیر جو ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انسٹرکشنز ہیں وہاں پہ رہنے والوں کے لیے بیسیکلی، رائٹ؟ سورہ فاتر کا جو یعنی آیت نمبر 27 کی بات کر رہے ہیں. ہاں، علم ترى ان اللہ، تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ کو دیکھنے کو یہ اعتراض ہاں، تھا نا، یہ آپ آپ نے نے کہا نہیں کہ دیکھا، دیکھے. یہ آپ جو ہے یہ آپ جو ہے وہاں کے قریشیوں کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ چونکہ یہ وہ والا ڈسکشن تو مکمل ہو گیا تھا، آپ اس کے علاوہ کچھ اور کہنا چاہیں تو کہیے. ہاں نہیں، میں آپ نے ایک اسکرین شیئر کرتا ہوں اگر آپ دکھانا چاہیں تو. یہ آپ نے دیکھیں یہ ماؤنٹین، یہ جو جیسے کوہ نمک کہتے ہیں، ایک یہ بات سنیے، جشک وہ ماؤنٹینز ہیں، مجھے اور آپ کو، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہیں لال پیلے نیلے کالے پیلے ہر طرح کے ماؤنٹینز ہیں. اس آیت میں مسئلہ کیا ہے وہ بتائیے. نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، میں کیا شیئر کر سکتا ہوں اسکرین اگر آپ کی اجازت مطلب ہو؟ ماؤنٹینز ہی کا تو دکھائیں گے نا فوٹو. ہاں، میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے دکھتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ معلوم چل جائے وہ کہ یہ ہمارے آیت کس آڈینس کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ ماؤنٹینز ہیں. اب آگے اوکے بولیں. اوکے ہاں ٹھیک ہے. چلیے، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ آیت جو ہے جو کوفہ کے آس پاس لکھی گئی ہیں یا وہ کوفہ کے آس پاس یہ باتیں چل رہی ہوں گی، کیونکہ یہ جو جشک ماؤنٹینز جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوفہ سے قریب 300 کلومیٹر کے آس پاس دور ہیں، ٹھیک ہے. اب دوسری چیز میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے تو کہ چونکہ ماؤنٹین قرآن وہاں ہے، شریف لہٰذا میں کہتا ہوں کوفہ ہی جانے کی کیا ضرورت ہے، انہیں ماؤنٹین ہی پہ بیٹھ کے لکھی ہوگی کسی نے. نہیں، کوفہ کے آس پاس تین سو کلومیٹر کا 300 کلومیٹر کا بھی کنسیشن کیوں دیا. ہاں یعنی نہیں، ان ہو کی سکتا ہے ہو حد ہو سکتا ہے گئی ہے جس نے ویسے. لکھی ہو وہ ماؤنٹین پہ بیٹھ کے لکھی ہو، پھر لیکن کوفہ پہ آ کے اس نے نہیں، میں کمپائل کہتا ہوں کر دیا، کوفہ یہ بھی کے ذریعے کرنے کی پاسبلٹی ہے. ضرورت ہی کیا ہے نا، یہ کہ بھائی اس نہیں، ماؤنٹین پہ کھڑے کوفہ ہو کے پہ اس لکھیے. لیے کیونکہ ہاں عباسیوں کا وہاں پہ گڑھ بس تھا. یہ بھائی ہیں ان کے جی، یہ ادھر ایلچی تھے، یہ ادھر کیا کرتے تھے پوسٹ مین کا کام عباسیوں میں. اچھا اگر ایسا ہوتا تو اب جیسے ہمالیہ کے جو ہے سفید ماؤنٹین ہیں، یا اور بھی کچھ اور نئی چیزیں ہیں جو قرآن میں شاید نہ ہوں، جو مختلف مناظر قدرت ہیں، تو ہم اس کا اضافہ کر دیتے. عباسیوں نے کیا، ہم بھی کر دیتے. مغلیہ دور میں ہو جاتا عثمانی کچھ ایک آیت، بھائی ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی 2-4 آیتیں ڈال دیں قرآن میں. یہ سارا کریڈٹ عباسیوں کو کہیں کو دے رہے ہیں آپ. نہیں، پر یہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا مکمل قرآن کا کوئی بھی نسخہ جو ہے وہ 7th سینچری کے 8th سینچری کے پہلے ملتا ہے یا نہیں. ہم تو قرآن کے نسخے کے اوپر اعتبار کرتے ہی نہیں نا. اعتبار کرتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے ہیں، یعنی اس پر ریلائی نہیں کرتے کہ قرآن کے محفوظ ہونے کے لیے اس کا مکمل نسخہ ہمارے پاس آج ہونا ضروری ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے، پھر تو کیونکہ وہ ہمارے لیے سیکنڈری سورس ہے. پرائمری سورس تو ہمارا تواتر طبقہ ہے، اسی پر بات ہوئی ابھی اسکیپٹک ایگنوسٹک سے. پر وہ تو ہائیلی پرون ٹو ایرر ہے ایکچولی.
कर दीजिए साबित। यानी ये कैसे हुआ कि हाईली प्रोन टू एरर, यानी तवातुर तबका जो है वो हाईली प्रोन टू एरर है? हाँ बिल्कुल, कैसे भाई? क्योंकि उसमें आपको ये नहीं मालूम चलेगा, हो सकता है कि वो तवातुर ही आ रहा हो, पर आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि वो इट डेट्स बैक टू 632 या फिर उसमें इख्तलाफ हो जाता, वो इख्तलाफ नहीं है, इसी को हम कैसे हो कंसिस्टेंसी जाता है बोलते वो हैं। तो, क्यों ना वो तो होता? हो सकता है एक यानी शख्स से आया है। अगर ये होता ना कि भाई कुछ सहाबा ने, मसलन कुछ सहाबा मिस्र चले गए, कुछ कूफा आपका जो लवली शहर है वहां चले गए, कुछ जो है वहां चले गए शाम में, हर एक सहाबी ने अपने एतबार से आयत एक बता दी, जो भी उसने सुनी नहीं सुनी, और उसके बाद वहां के लोगों ने उसको नकल कर लिया और आगे पहुंचा दिया, तो फिर तो आज अलग अलग वर्जन होने थे ना। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि ये जब कंपाइल हुई और तब कूफा में ही कंपाइल हुई और कूफा से ही तो मैं कहता हूं कूफियों ने अगर कंपाइल किया तो शामियों ने क्यों कबूल किया? शाम और कूफा के अंदर तो बड़ी टसन चलती थी। नहीं, वो तो सारे एक के अंडर थे ना, वो तो किसने? अच्छा एक मिनट, आपको क्या लगता है कि अब्बासी खिलाफत के बाद बनु उमैया खत्म हो गए थे? बनु उमैया अंदलुस चले गए थे, अंदलुस चले गए थे, तो अंदलुसियन ने क्यों कबूल किया? ये कह करके ये हो सकता था ना कि ये तो अब्बासियों का है, हम क्यों माने? नहीं, फातिमियों ने क्यों किया? मिस्र सही बात है, फातिमियों ने क्यों किया? शुरू किया होगा, वो भी एट सेम टाइम तीन जो हैं वो सेंट्रल चल रहे थे उस वक्त। एक इजिप्ट में था, एक स्पेन में चला गया था, और एक इधर इराक में था, जी। बगदाद। और मैं ये भी बता दूं कि अगरचे अब्बासी जो हैं वो कूफा से गवर्न कर रहे थे, लेकिन एकेडमिकली इराक और शाम इन दोनों के दरमियान जबरदस्त इख्तिलाफ था। उसकी एक मिसाल ये है कि इमाम औज़ाई के सामने इमाम मोहम्मद जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, उन्होंने जो है कोई किताब लिखी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कूफियों को क्या आता है इस मौजू के ऊपर, फिक़ह के ऊपर बात करने का क्या हक है? उसके बाद उन्होंने एक दूसरी किताब लिखी, तो इमाम औज़ाई ने उसको तस्लीम किया। इमाम औज़ाई शाम में थे और मोहम्मद इब्न हसन कूफा में थे, तो आपस में इनमें कंपटीशन चलता था। कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि कूफी कोई चीज गढ़ ले और सारी दुनिया मान ले। फिलो भाई ऐसे करते हैं, आपकी जो टेक्निक है ना वो मुझे पसंद आई है, तो क्यों ना सनातनियों को खुश करने के लिए ये जो सूरह बकरा है ये मुगलिया दौर में बनी होगी, क्योंकि ईद बकर जो है वो इंडिया के अंदर मनाई जाती है और हिंदुओं को जलाने के लिए सूरह बकरा बनाई गई थी। ठीक है फिलो भाई, लो जी एतराज घड़ लिया नया, लो जी फैला दो इसे मार्केट में, ये हो रहा है इस्लाम के साथ, ये हो रहा है जी। मुफ्ती साहब, दूसरा एक्चुअली कुरान शरीफ में जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत कम देखने मिलती है, ठीक है। मेरे ख्याल से मक्का का भी जिक्र एक ही बार हुआ है सिर्फ, राइट? मक्का नाम से एक मर्तबा जिक्र काफी नहीं है? नहीं, मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूँ। बक्का का जिक्र हुआ है, बक्का वैली ऑफ अलबलदुल अमीन के नाम से जिक्र हुआ है, वैली ऑफ बक्का, तुनज़िरा उम्मुल कुरा का जिक्र हुआ है, तो मक्का के अलग अलग नाम भी हैं। एक और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखती है वो है सूरह अस्सफ़ात की 133 से 138 के बीच में। साफात, राइट, सूरह साफात 133 138। फिलो भाई एक ना सूरह कहफ के अंदर ना मजमल बहरैन है, तो ये बहरैन के अंदर लिखी गई थी, ठीक है ना, ये याद रखना। ये सही है जी। अच्छा एक सूरत फिलो भाई उसमें आता है इहबितू मिस्रा, वो मिस्र में लिखी गई थी। अच्छा एक आता है गुलिबत रोम, वो पापा ने लिखी थी, पापायत ने वेटिकन में जी। अच्छा आयत बताएं क्या है? हाँ, 133 से 138 के बीच में भाई 101, ये थोड़ा तर्जुमा पढ़े उसका, चूंकि ये जो है व इन्नकुम लतम इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरना इज़ नज्जयनाहु अहलहु अजमईन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरना आखिरीन व इन्नकुम लतमुररून अलैहिम मुस्बिहीन। ठीक है, इसमें क्या मसला है? ये पिलर ऑफ सॉल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? पिलर ऑफ सॉल्ट, व इन्न लूतन लमिनल मुरसलीन नज्जयनाहु अहलहु अजमईन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरना आखिरीन व इन्नकुम लतमुररून अलैहिम। इसमें तो पिलर ऑफ सॉल्ट का कहीं जिक्र नहीं है। 37 की 133 पिलर यार ये हर जगह कुरान के उसमें भी जो है ना ऐड घुसा देते हैं, रुक जाइए, ये बड़ा मसला है। नहीं, इसमें मुझे मुफ्ती साहब पिलर ऑफ सॉल्ट का समझ नहीं आता। वो तो कुछ लोगों ने मंसूब किया हुआ है ना कि वो हजरत लूत की बीवी का वो स्टैचू है कुरान में। अच्छा, वो वाली बात हो रही है। 137, हाँ 137 138 में ये लिखा है ना कि यू पास बाय इट डे एंड नाइट प्रीटी मच। मक्का वालों, तुम इनकी बस्तियों पर से गुजरते हो कभी सुबह हो, व इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन। तो इसमें पिलर ऑफ सॉल्ट कहां से आ गए? अब मैं एक आपको जोक सुनाता हूँ।
पिलर ऑफ सॉल्ट पे याद आया, 3-4 साल पहले मेरा जॉर्डन जाना हुआ भाई। तो मैंने मेरे साथ एक साहब और थे, तो हम दोनों बाहर निकले एयरपोर्ट से। हमारे पास सिर्फ 10-12 घंटे थे जॉर्डन में, तो हमने कहा चलो यहाँ के तारीखी मकामात देख लेते हैं। तो एक टैक्सी वाले से बात की, हमने कहा कि भाई वो जो हजरत लूत का जो इलाका है हमें वहां भी जाना है जहाँ उनकी कौम पे अजाब आया था। कहले हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो हमें लेके चला, तो जो डेड सी है वहां तक तो उसने पहुंचा दिया। अब उसके बाद कहने लगा, मैंने कहा अच्छा हजरत लूत अलैहिस्सलाम का यहाँ कहीं कोई निशान? कहले हाँ उनकी कब्र है। मैंने कहा अच्छा, वो तो यहाँ से चले गए थे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यहाँ से चले गए थे? कहने नहीं, कब्र यही है उनकी। मैंने कहा अच्छा कहाँ है? उसने एक बहुत बड़ा पत्थर जो है ना ऊपर रखा हुआ था, कहले वो रही। अच्छा, उसके बराबर में एक पत्थर की शक्ल की एक वो लंबा सा पत्थर था, कहने ये उनकी बीवी है। तो मैंने कहा भाई ये बेवकूफ किसी और को बनाना, हमें यहाँ से लेके निकल। नहीं वो असल में वो मुफ्ती साहब उस पे ना वो नहीं मशहूर मुफ्ती हो साहब, गया है लेकिन कि यही वो तो उन्हीं की लेजेंड्स बीवी है, का वो यही तो स्टैचू है। मेरा कहने का यही मतलब है कि ये लेजेंड्स जो हैं ये बुक्स में आ गई हैं नहीं, बात। ये गप्पे हैं नहीं, आपकी, ये आपकी खुद साख्ता गप्पे हैं, ये लेजेंड जी नहीं है मेरा भाई। यही ये आपको तब से लेजेंड्स इतनी आमिर आयतें भाई दे के बहुत समझाया पहले है से चली आ जी। रही हैं ये लेजेंड्स, ये ऐसा नहीं है अच्छा, कि अगर अभी ये अभी होता अभी अगर ये होता तो मैं तो उसको मान लेता। मैंने कहा जी यही बीवी है और यही कब्र है, मैं तो मान लेता फौरन। मैं तो उसको मैंने तो उसको पैसे भी पूरे नहीं दिए। मैंने कहा तू हमें हर जगह टूर नहीं तूने पूरा कराया, डांटा मैंने उसको अलग कि तू धोखा दे रहा है। तो ये वाले जो धोखे हैं ना, ये असल में क्या है, मुस्तशरिकीन ने ओरिएंटलिस्ट ने लोगों के जहनों में डाल दिए। यहाँ इसमें पिलर्स ऑफ सॉल्ट का कोई जिक्र ही नहीं है। लतमुर्रूना अलैहिम, उनकी बस्तियों से आप गुजरते हैं दिनों रात। दो बस्ती से तो मैं भी गुजरा। इसकी तफसीरों में अगर देखेंगे तो मिलेगा मेरे ख्याल से। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पर हो सकता है कि आप सही हो सकता है मैं गलत हूँ इस मामले में। नहीं यही है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि तफसीरों आप में ही का गलत होना तय है। ये ध्यान वाली बात नहीं है भाई। बात हो तो फिर उसूल की, यानी आप अगर हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, दलील की बुनियाद पर होना चाहिए ना। भाई मुझे ध्यान आ रहा है तो ये तो कोई दलील ना हुई। ठीक है, मैं एक कोशिश करता हूँ एक तफसीर ढूंढने की, ठीक है ना। अच्छा तो चलें, अब मुख्तसर बात करनी थी ना, ये वाली बात तो हो गई, दोनों बातें हो गई अब जी हजरत। इनके लिए ना जो फिलो भाई हैं, इनके साथ ना एक दफा ये हुआ कि एक यानी इनकी मिसाल इस तरह है जिस तरह ये कुरान से टुकड़े पकड़ के कर रहे हैं। तो वो एक बेवा थी और उसका देवर था। उन दोनों के दरमियान ना तरके का और विरासत का मसला चल पड़ा। उन्होंने कहा मसला कैसे हल करें, और कहा दोनों मुसलमान है, मसला करना हल कुरान से ही है। ठीक है जी। तो वो बच्चा जो है ना उसका बेवा का, वो जनाब केस लेकर, तो जनाब फिलो साहब जो हैं इस तरह के कोई थे आदमी मुफक्कर, उनके पास चले गए। और उधर से देवर जो था यानी चचा उसका, वो भी आ गया। तो इन्होंने खिलाए पैसे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये कैसे? कहता जी मैं कुरान से साबित करूंगा। उन्होंने कहा कैसे करोगे साबित? उसने कहा कुरान में लिखा हुआ है मा अगना अनहु मालुहु व माँ का सब। तो ये माँ का सब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जितना माल बचा है माँ का सब, माँ का सब, यानी माँ का सारा सब, माँ का। हाँ माँ का। ठीक है, तो वो केस जीत गए। तो ये फिलो भाई की मुफक्कर पंक्ति जो है ये इसी किस्म की होती है जी। जी चले ठीक है फिर भाई, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए मुफ्ती साहब बाद में बात करते हैं।